So welcome back class 10th students in our chemistry class, and we are in our ninth lecture of the chapter acid, bases and salts, and I hope we will take some more lectures to finish it because it's a big chapter, it's a conceptual one. Whole of the inorganic chemistry, I think it is in it. So today's salt, we have studied about acid, bases, and now we will study salt. Now salt, if we go for the study for salt, for the definition of salt, so 2 to 3 things we have to remember. First, there is the word partial replacement of the hydrogen ion or the hydroxyl ion. Then complete replacement of the hydrogen ion or the hydroxyl ion as per requirement. Basically of the hydrogen ion in the case of salts preparation. And now what does it mean partial replacement and what does it mean complete replacement? So partial replacement means, suppose कि when it is not in a sufficient amount. What is not in sufficient amount? From which metallic ion it is being replaced. So suppose H plus ion is being replaced, so it's but obvious that it has to be replaced by basic ion, that is the metallic or the ammonium ion. So if it is in lesser quantity, lesser amount, so partial replacement will be there. But if it is in excess amount, so complete replacement will be there. Now the important thing is this is the theoretical part, and if we go for the mechanic, or if we go for the mechanism, more appropriate word, as I have told you once earlier in case of acids, so that is to be grabbed, that is to be understood. If you understand that thing, then learning the acid, learning the bases, learning the salt, the formation, the preparation, it will be very easier. So my dear students, that ionization, first ionization, second ionization, third ionization, if you remember, that is very, very important. In this also session, I will again show you how it takes place. First thing. So we have so many definitions. Okay, we can go through it as in our book. It is given in a very orderly manner and very good manner. And apart from that, we will study that also. And apart from that, I will give you some tips, because most of the definition are based on behalf of preparation of salt, preparation of normal salt, preparation of acidic salt, on the basis of or on the behalf of preparation of basic salt, preparation of complex salt. So it goes like that. But okay, this is prepared by this method, this is prepared by this method, but there is an important point: how to identify by just seeing it, by just looking into it, whether it is a normal salt, whether it is an acidic salt, whether it is in a basic salt. So that trick or that tip I will also give. There are very smaller ones, there are very little ones, but it will be very helpful, not in this 10th class, but in the further classes also, 11th class, 12th class, and after that we will face the competition. So that concept part are very important. So try to understand that, and rest we have all the things in our book. If we talk about the salt, the soluble salt, the insoluble salts, then the preparation, that we have to learn and cram, and that is to be done for our as per the requirement of our board examination. And apart from that, try to go for the conceptual study also. So let's start. What is salt all about? So what is salt? So the definition of salt, it has 2 definitions. In our book also it is given, it has 2 definitions. The first, the basis of the first definition is the how it is prepared, on behalf of it, the preparation, and the second one is that on the basis of the ionization or the dissociation, the straight ionization or the straight dissociation. So what it was being said, that the salt formed by the partial or the complete replacement of the replaceable hydrogen ion, or the by a metallic or the
ammonium ion, that is the basic radical. So I have told you partial or complete replacement of the replaceable or the hydrogen ion. So from where does it come? It comes from an any acid. So it is to be replaced by any base, and from there we will get basic ion or the metallic ion or the ammonium ion. Nowadays, my dear students, this is very important to understand कि partial or complete replacement, that is the ionizable hydrogen of an acid by a metallic. That partial means when suppose we have NaOH plus H2SO4 gives NaHSO4 plus H2O. So we are getting a salt, and complete this. So what does it mean? Means partial is when we are taking this NaOH in a lesser amount, insufficient quantity, and it is being replaced by whose H plus ion? So H plus of this H2SO4, and then we have this one. Here we are having the complete. So here we are having only one H being replaced. See, one H is being remaining, and here all the two H being. So we are getting Na2SO4. So this I have explained you earlier. Again I will explain you. You have to take care of it, how the ionization or the dissociation process goes on. Then the second is ionic compound which dissociates to yield positive ion other than H plus, other than OH minus. तो बहुत सिंपल है कि ऐसा सॉल्ट बना. सॉल्ट क्या है कि कुछ भी दे वो, लेकिन क्या नहीं देना चाहिए? H प्लस नहीं देना चाहिए जब डिसोसिएट हो. कुछ भी दे वो तो क्या नहीं देना चाहिए? OH माइनस नहीं देना चाहिए जब वो डिसोसिएट हो. तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl. तो यहाँ पे what we are getting in the as the positive and the negative ion, Na plus and Cl minus. So we are not getting H plus or OH minus ना, so that's why this NaCl is salt. तो ये ionic compound वाला definition हो गया, और ये हमारा on the behalf of preparation हो गया. Now again I am going to, then we have the classification: normal salt, acidic salt, basic salt, mixed salt, complex salt. One by one we will study, and the bookish definition we will study, because that is also 100% correct and very good explanation is being given, and then I will give you some apart from that, so you will understand it in a better manner. Now let us take this reaction. NaOH, पहली रिएक्शन लेना, ध्यान से देखना. NaH plus H2SO4. तो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब समझ में आना चाहिए. तो NaOH जो है फर्स्ट आयनाइजेशन, देखो लिख भी रहा हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या दे देगा? Na प्लस OH माइनस. यहाँ पे एंड OH माइनस लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये तो नाउ H2SO4 फर्स्ट आयनाइजेशन क्या देगा? पहले H प्लस एंड HSO4 माइनस. ये फर्स्ट आयनाइजेशन है. और देखो जो सेकेंड फिर ये निकल गया, फिर इसमें इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन. ये सीख लो, फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन बड़ी कमाल की चीज़ है और बहुत हेल्पफुल है कॉन्सेप्ट बनाने में. सेकेंड आयनाइजेशन, राइट. तो इसके बाद तो आयनाइज होगा नहीं. अब फर्स्ट आयनाइजेशन की रिएक्शन हम लिखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे क्या है? NaOH और H. तो रिप्लेस कौन कर रहा है? H प्लस रिप्लेस करेगा ना. H प्लस विल बी रिप्लेस्ड. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ये, या आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द मेटालिक आयन. मेटालिक आयन कहाँ से मिलेगा? इस बेस से. तो इससे रिप्लेस हो गया. इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ये पहली रिएक्शन जो हो रही है, ये NaOH, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना सबको? NaH प्लस H2SO4 फर्स्ट आयनाइजेशन की क्या रिएक्शन हुई? ये NaHSO4 और प्लस H2O. तो हमने क्या किया? इसको बैलेंस करना चेक कर लेते हैं.
बैलेंसिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। SO4 O45 और 2,3 2,3 बैलेंस। तो ये फर्स्ट एडिशन, तो यही कह रहा है कि पहली बार जब एक H रिप्लेस हुआ तो ये हमें मिला, तो इसी को कह दिया है पार्शियल रिप्लेसमेंट। और उसका रीजन क्या दिया है कि बेस बीइंग टेकन इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी। तो और फिर जब बेस था नहीं तो कहाँ से फिर अगला रिप्लेस कर पाएगा। तो और ये अब आते हैं इस पे, देखो सेकेंड आयनाइजेशन पे। तो सेकेंड आयनाइजेशन में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से मेरी बात समझना, H+ और SO4 माइनस माइनस, और ये हमारे पास फिर से सफिशिएंट अमाउंट में है। ये बेस हमारे पास फिर से सफिशिएंट अमाउंट में है। तो फिर हमारे पास क्या मिल गया बेस में, Na+ और OH-, और ये सेकेंड आयनाइजेशन में है H+ और SO4 माइनस। फिर ये रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो हमारे पास रिएक्टेंट, देखो इस चीज को पकड़ लो, हमारे पास रिएक्टेंट्स अभी भी क्या है, वही है Na+ + H2SO4, राइट। रिएक्टेंट्स तो वही है ना, लेकिन पहले आयनाइजेशन वाला रिएक्शन हो गया तो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन में जो बने हैं ये हमारे पास एक्चुअली में रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Na और SO4 ये आपस में बनेंगे और H2O H+ और H-। तो Na और SO4 जब बनेंगे तो क्या फॉलो करेगा, वैलेंसी रूल फॉलो करेगा। ये क्या कैसे हो गया, Na+ और SO4 माइनस माइनस, तो ये Na2SO4, ये फॉर्मूला लिखना पता ही आप लोगों को। तो Na2SO4 मिल गया और प्लस H+ OH माइनस H2O मिल गया। अब वी विल चेक द बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग चेक करते हैं, Na1 है, यहाँ 2 है, तो इमीडिएटली व्हाट वी विल डू, वी विल बैलेंस इट। पहले मेटल्स को बैलेंस कर देना, बैलेंसिंग का रूल पता है ना। तो 2Na, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, सल्फर यहाँ पे 1 है, फिर O को बैलेंस करते हैं, O काउंट करें 2O 4 to 6 4 5, तो O को बैलेंस कर दें। और क्या रूल है, जब भी फिर हम कोई बैलेंस करते हैं फिर स्टार्ट से हम चेक करते हैं, अगेन वी विल चेक Na 2Na, ओके, S1 O 4 to 6, इधर 4 to 6, ठीक है। H, अब लास्ट में H 2 to 4 2 to the 4, so this is a बैलेंस। ये आपका जो है कह दिया कि ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट, हमें ये रिएक्शन ये मिल गई। सो this is the mechanism which I was trying to explain you, and I have explained you earlier also. This is very very important. So this is the partial and the complete. So you can do it by your own also. Now और यही जो है सॉल्ट जो बन रहे हैं ये डायरेक्ट आयनाइज हो रहे हैं। तो देखो इसको आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा, 2Na+ एंड SO4 माइनस माइनस। तो सेकेंड वाली डेफिनेशन है वो भी होल्ड ट्रू कर रही है ना, कि हमें H+ या OH- नहीं मिल रहा है। आप कह सकते हो सर इसमें भी हमें दिखाइए, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या मिलेगा, Na+ एंड HSO4 माइनस। तो क्या यहाँ पे हमें H+ या OH- मिल रहा है, तो इसलिए ये सॉल्ट है, डायरेक्ट आयनाइजेशन में वो सेकेंड डेफिनेशन भी होल्ड ट्रू कर रही है। सो यू कैन चेक इट एंड यू कैन मेक योर कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, normal salt, complex salt, double salt, all these salts we have, one by one we will study. So let's start, and apart from the, I will give you other than the bookish, and the bookish one is 100% correct, 100% accurate, 100% in an orderly manner, and that you have to learn and cram also for your board examination. Apart from that, I will give you some tricks or tips for recognizing the immediate recognition, immediate you can say identifying the normal salt, the acidic salt, the basic salt, just by seeing. So you can identify it. So let's start. So now first of all we will study about normal salt. So what is normal salt? Normal salt is that salt that is formed by the complete replacement. So abhi just we have seen the partial replacement and the complete replacement. So complete replacement of the hydrogen ion of an acid molecule by basic radical or ammonium ion. So we get which type of salt? Normal salt. तो जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उस एसिड का
या आयनाइजेबल H प्लस है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है किससे, बाई मेटेलिक आयन ऑफ द बेस और द अमोनियम आयन। तो वो उस तरह के जो सॉल्ट बनते हैं दैट इज द नॉर्मल सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो वही है NaOH H2SO3, तो हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिस H2SO3 हैज, दिस इज 2, 2 बार आयनाइजेशन होगा ना, एक बार H, जैसे भी मैंने जस्ट कराया तो इसको मैं फिर इसको नहीं करने जा रहा हूँ। H प्लस और HSO3 माइनस फर्स्ट आयनाइजेशन, H प्लस एंड HSO3 माइनस फर्स्ट आयनाइजेशन, फिर बनाओगे फिर इसका आयनाइजेशन होगा H प्लस और SO3 माइनस माइनस, तो 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी और फाइनल वाली स्टेप वाली रिएक्शन जो अभी हमने देखा Na2SO, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो सारे के सारे जब रिप्लेस हो गए तो इस तरह के सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स। सो दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। नाउ ये तो प्रिपरेशन की फॉर्म ऑन द बेसिस फॉर्म, ये प्रिपरेशन के बेसिस पे फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये डेफिनेशन को देखा। इट्स गुड एंड 100% राइट। नाउ हम कह रहे हैं कि हमें कोई सॉल्ट मिले, हमें कोई सॉल्ट दे दिया गया और आइडेंटिफाई करना है कि बताओ ये नॉर्मल सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सॉल्ट विच डज नॉट रिलीज H प्लस आयन और OH माइनस आयन इन एनी ऑफ द आयनाइजेशन इज नोन एज नॉर्मल सॉल्ट। कितने भी आयनाइजेशन हो जाए उसके, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, इन एनी ऑफ द आयनाइजेशन का मतलब पकड़ लो क्या है कि एनी ऑफ द आयनाइजेशन का मतलब चाहे फर्स्ट आयनाइजेशन, चाहे सेकंड आयनाइजेशन, चाहे थर्ड आयनाइजेशन, जितने भी आयनाइजेशन पॉसिबल है उसके वो हो जाते हैं। और किसी भी आयनाइजेशन में हमें क्या नहीं मिलता है, H प्लस OH माइनस नहीं मिलता है, H प्लस या OH माइनस नहीं मिलता है, तो दैट इज ए नॉर्मल सॉल्ट। देखो एग्जाम्पल NaCN, NaCN में फर्स्ट आयनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, Na प्लस एंड Cn माइनस। तो NaCN में H प्लस या OH माइनस नहीं मिला तो दैटफॉर इट इज ए नॉर्मल सॉल्ट। BaCl2 में फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन क्या होगा BaCl2 का, पहले हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन दिस इज द करेक्ट स्टेप। पहले क्या निकलेगा, क्लोरीन। क्यों क्लोरीन निकलेगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन अब इसका होगा सेकेंड, ये फर्स्ट आयनाइजेशन हो गया और ये सेकेंड आयनाइजेशन। दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकेंड आयनाइजेशन। तो वी हैव BaCl प्लस प्लस Cl माइनस, फर्स्ट आयनाइजेशन में मिला और सेकेंड आयनाइजेशन में Ba प्लस प्लस एंड Cl माइनस। और व्हाट इज द रीजन कि वी आर गेटिंग Cl माइनस, बिकॉज Cl क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले ये हमको मिल जाएगा फिर BaCl मिलेगा। और हमें क्या आदत है लिखने की, डायरेक्ट हम लिखते हैं Ba प्लस प्लस एंड 2Cl1 माइनस, हमें ये डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो वही आ रहा Ba प्लस प्लस और Cl माइनस 2Cl माइनस। लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन होता जो इस तरीके से है, जो मैकेनिज्म लिखते हैं वो इस तरीके से। तो वी आर नॉट गेटिंग H प्लस और OH माइनस आयन, so therefore it is a normal salt. Now let us go for the acidic salt. Now I would like to give one more example of this normal salt. Now AlCl3 we have. So AlCl3 first ionization, नीचे लिखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या होगा, अगेन क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl1 माइनस एंड AlCl2 प्लस, फर्स्ट आयनाइजेशन। सेकेंड आयनाइजेशन फिर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl माइनस एंड AlCl प्लस 2। Then we have third ionization. This is second ionization. तो थर्ड आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, अगेन Cl1 माइनस एंड Al प्लस 3। सो सी व्हाट वी आर गेटिंग, Al प्लस 3, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, तो Al प्लस 3 एंड 3 Cl माइनस। तो एनी ऑफ द आयनाइजेशन यू सी वी आर नॉट गेटिंग H प्लस और OH माइनस आयन, सो देयरफॉर इट इज ए
normal salt. Now let us go for the acidic salt. Now dear students, acidic salt formed by the partial replacement, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जब सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे, formed by the partial replacement of the replaceable hydrogen in an acid molecule by basic radical. इसका रीजन क्या देते हैं कि इसका रीजन ये देते हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट है, बेस इज नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट, तो एक ही बार वहां पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो पा रहा है, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा. तो बाय दिस डेफिनेशन इट इज, आई थिंक यू आर वेरी मच टू इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट. नाउ देख के कैसे हम पहचानेंगे, आयनाइजेशन से कैसे हम पहचानेंगे. द टिप इज दैट फ्रॉम माई साइड, ए सॉल्ट विच रिलीजेज H+ आयन एक्सेप्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन को छोड़ के किसी भी आयनाइजेशन में अगर वो H+ आयन दे रहा है तो वो हमारे लिए एसिडिक सॉल्ट है. ये है, दिस इज द टिप फॉर आइडेंटिफाइंग द एसिडिक सॉल्ट. फर्स्ट आयनाइजेशन छोड़ के किसी भी आयनाइजेशन में अगर H+ दे रहा है तो दैट इज एन एसिडिक सॉल्ट. और ये वाला तो आपको बोर्ड में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो ये आप लिखोगे और ये आपके पास टिप है, ट्रिक है कैसे आप पहचानोगे. ए सॉल्ट विच रिलीजेज H+ आयन एक्सेप्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन, दिस इज दैट इज द एसिडिक सॉल्ट. नाउ लेट अस सी NaHSO4. NaHSO4, तो NaHSO4 जो है, हम इसको देखें कि क्यों ये एसिडिक सॉल्ट है. NaHSO4, तो NaHSO4 का हम आयनाइजेशन करेंगे. तो फर्स्ट आयनाइजेशन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, Na+ एंड HSO4-. फिर सेकेंड आयनाइजेशन करते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, H+ एंड SO4-. सो सी ए सॉल्ट विच रिलीजेज H+ आयन एक्सेप्ट द फर्स्ट आयन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन में हमें क्या H+ मिल रहा कहीं से, नहीं. सेकेंड आयनाइजेशन में हमें मिल रहा, तो देयरफॉर इट इज एन एसिडिक सॉल्ट. नाउ लेट अस सी अदर एग्जांपल. NaH2PO4, NaH2PO4, तो NaH2PO4 में आयनाइजेशन करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन. फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या मिलेगा हमें, Na+ एंड H2PO4-. ठीक. सेकेंड आयनाइजेशन में आ जाओ, सेकेंड आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, H+ एंड HPO4-. थर्ड आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, H+ एंड PO4-. तो फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या हमें H+ मिल रहा है, नहीं, लेकिन सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन में वी आर गेटिंग H+, so therefore it is an acidic salt. So ये this is the tip to identify the acidic salt. और बाकी आपके पास partial replacement है अगर, तो that is an acidic salt when the base is not in exact quantity. And whatever the properties, and we have already studied so many times, so that I'm not going to explain. And that's all for today. And the next session we will go for basic salt. इसी तरीके से basic salt भी है, हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पे आ जाएगा. और सेम यही वाला टिप वाला है कि फर्स्ट में जो है OH- एक्सेप्ट द फर्स्ट, OH- दूसरे तीसरे में मिलता है, तो वहाँ पे बेसिक सॉल्ट. देन वी हैव कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट. सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. Dear student, there is one correction by carelessness. I have missed this one minus charge, and it will be -2 here, or you can write 2-, and then again in the third ionization it will be PO4-3. So this is the correction. Make it correct. 2- and 3-. So that is the correction. Thank you.